Today we will start exercise 2A of chapter Banking from Selina Concise for class 10th from question number 3rd. In question number 3rd, yes, Krishnali, each of A and B open a recurring deposit account in a bank if A deposit rupee 1200. So what is 1200, Krishnali? P, that is a monthly installment. Per month, जो per month में deposit करवाते हैं, that is called principal. Rupee 1200. Per month for 3 years. Time is 3 years. Chinmay. Time can be written as N, and N is the number of months. Yes, Chinmay. How many months are there in 3 years? Chinmay is not there. Shaurya? Sir, 36. 3 into 12. That is 36 months. जो N है बेटा, that must be in months. P, principal, that is the monthly installment. N is a time. Time is always in months. That's why I have to convert it into months. While B, deposit rupee 1500 per month. For B, the principal amount is rupee 1500 per month, जो monthly installment है. For 2.5 years. Time 2.5 years. That can be changed into 2 to the 4, 1, 5. 5 upon 2 years. Multiply by it with the 12 to make it in months. How many months are there? 30 months. Yes, Adya. Rate of interest is same for both. 10%. Rate of interest is 10% per annum. Who will get more amount? Who will get more amount and by how much? Amount means maturity value. First of all, yes, Adya, formula for interest. So formula for interest is P into N plus into N plus 1 into R Very upon good. 2 12 into 100. 2 into 12 into 100. Yes, sir. This one. Principal is, first of all, we can calculate it for A. For person A. Principal is 1200. And that is 36, not 3 year months. 36. 36 plus 1, 37. Into R is 10 upon 2 into 12 into 100. 2 zeros are cancelled with these 2 zeros. And 12 is cancelled with 12. 2, 18. Here in rough work, multiply 18 with 37. 8 7s are 56, 5 carry, 7, 24, 31, 5, 36, 3 carry, 3, 3, 6. 6, 6, 6, 0. That is the interest. That is the interest. Now the maturity value. Akriti. Yes, sir. Maturity value is? So principal into time plus interest. P into N. That is the monthly installment into N plus I. I is the interest. Principal is 1200. 1200 into N. N is 36. Plus interest we receive 6660. What we get? 12 6 are 72. 7. 36 7 43. 2 zeros are same this one. 43200 plus 6660. Add these 0 6 8 9 4. 49,860. That is the maturity value for person A.
rupees must. You have to write down. Now for the same way, for person B, interest formula is same. Yes, Aradhya, what is the formula? Just tell me, Aradhya. अभिज्ञान अभिज्ञान बोलो बेटा, ऐसे चुप रहने से कोई आएगा नहीं. सर मैं बोलूं? सर मैं बताऊं? यस इप्सिता. सर P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. देख के तो हर कोई बता देता है. यहाँ से देख के बताया, मुझे पता है. कोई बात नहीं सर, मैं तो भी बता देती हूँ. हाँ, वेरी गुड. रुक जाओ बच्चे. प्रिंसिपल इज 1500 and 30 we have used. 30 plus 1 31 into R is 10 upon 2 into 12 into 100. Here 2 zeros are cancelled. 12 12 12 12. Okay. 10 10 threes are 4s are. Here 2 5 again 2, यहाँ पे 5. What is left? 15 5s are 75. 31 5s are 5 1s are 5, 165 upon 2. Multiply these two in rough work. 165 into 75. 155 होगा. हाँ sorry 155 बेटा. 5 5 are 25, 2 25 to 27, 2 7. Multiply करके कितना आएगा? Sir 11625 upon 2. Change it into decimal. Yes, 5 to the 10, 812.5. 2.5. Yes, sir. Now the maturity value, P into N plus I. P into N plus I. P, principal is 1500 per monthly installment. Number of months are 30 into 30 plus interest. This one 5812.5. 15 threes are 45. साथ में 3 zeros plus 5812.5. Add these two. What we get? 0.5 as like 812.5. कितना इप्सिता? 50812.5. Sir 50,812.5. Okay, this one. Now here A receive this amount, B receive this amount. Which amount is bigger? This one ना? B का. Yes. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे last में? Therefore B receive more amount than A. By कितना? This minus this. 50,812.5 minus 49,860. ये माइनस कर दो. 50,812.5 में से 49,860 952.5. by this one. लास्ट में ये प्रेजेंटेशन करनी है बेटा. अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो बताओ बच्चे. So easy. सेम वे से दो सम थे. हाँ जी yes sir. यस सर क्लियर. सर आज मैथ्स के मार्क्स पता है कितने आए हैं ऋतुजा? सर 72. आउट ऑफ 80. यस तू तो बोल रही थी 100 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 आएंगे. ये मैंने नहीं बोला था सर. वेरी बैड मार्क्स. सर मेरा एक ही wrong हुआ था. सर इस बार नहीं. इसको ठीक कर दिया सर बचे हुए मार्क्स इसलिए काटे सर, जैसे रेट इज इक्वल टू 10% था तो मैम को चाहिए था कि रेट इज 10% ऐसा पूरा लिखना था. चलो कोई बात नहीं. फिफ्थ सम बच्चे. नाउ
क्वेश्चन नंबर 5. भूतनी नंबर 1 कैमरा ऑन करके बैठी है आज. जोया आई है? कैमरा खोलने को तैयार नहीं था, जो ऑन करके बैठी हुई है. हाँ. तू यार, तेरे को मेरे से कोई प्रॉब्लम है क्या? अब तू देख, बिल्कुल नहीं. बहुत सारी आज जोया कहाँ रह गई? ये तो कुछ जरा सा बोलो नहीं पटक जाती है. चलो भूतनी कोई नंबर बात 1 2 तो ठीक है सर, मेरे को भी कोई पोस्ट वोस्ट दे दीजिए सर अगर वैकेंसी है. तेरे को हेड ना लगा दे इनका सबका. चलो छोड़ो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन बेटा. A man has received recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupee 10,206 on maturity, means this is the maturity value. Find the value of monthly installment. Monthly installment find करनी है तो अदमिया ही है ना? अदमिया, तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट क्या चीज फाइंड करनी है? Principal we have to find. A man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. N सबसे पहले क्या आएगा? N 3.5. 3 to the 6 1 7. 7 upon 2 years. तो 7 upon 2 into 12. मैंने पहले ही बोला है कि उसको मंथ में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है. 42 months. And is this one. Rate of interest is 12% per annum. Maturity value 10,206. किसने बोला था ये समझने के लिए? सर मैंने कौन? नेम है कोई? कृति. सर मैंने भी. ओके, पहले कृति. मेच्योरिटी वैल्यू के नीचे उसका फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूं? सर प्रिंसिपल इनटू एन प्लस इंटरेस्ट. Is 10,206. Yes. It is so easy, Kriti. There is nothing. We have to only fill the values. P we don't know. N. In place of N, we will write down 42. Plus interest. In place of interest, fill the value of interest. Formula. Sir, Yes. Sir, principal into n, bracket n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. Yes. Now you have to write down step by step and solve. You get the answer. How? 40p into 42. What we get, Kriti? So 42p. Plus p as like n is 42. N plus 1. 42 plus 1. 43. R is 12 upon 2 into 12 into 100. 12 से 12 कट हो गया. यहाँ पे 10,206 सेम. 2 से 21 आ गया. Now 42p as like plus 21 3s are 63. 6 carry. 21 4s are 84 plus 6. Oh, sorry. 84 plus 6 90. 903 upon 100. यही आएगा ना 43 को 21 से मल्टीप्लाई करके. 4 2 4 3 Yes, 6 10 8 1 9. Yes, sir. 10,206. Kriti, now how we can find P? So we will take out the LCM. Yes, LCM is 100. But I have to write down here So 4,200. P plus 950. is equal to 10,206. Add these two. 3. Unit में unit digit add हो गया. 0 plus 0 0. 9 plus 2 11. This one P upon 100 is 10,206. और किसने बोला था बच्चे ये समझ नहीं आया? और किसको समझ नहीं आया बेटा? मनित. यहाँ से बच्चे P बताओ मुझे किसके इक्वल आएगा? मनित. Firstly tell me. सर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10206 into 100. पूरा बता क्या लिखूं मैं यहाँ पे? into 100. Upon 5103. 5103. We have 5103 into 2.
तो प्रिंसिपल वी गेट 2 into 100 200. 200. तो लास्ट में therefore monthly installment is rupee 200. That is answer. Is it okay? यस सर, सर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी. कोई बात नहीं बेटा, ट्यूशन किस लिए रखी है? थैंक यू सर. नहीं, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ, ट्यूशन Thank किस you, लिए sir. रखी है? समझने के लिए ना. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. अब बच्चे मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ उसी ने आंसर देना है. ओके? अदिति. Okay, sir. Yes, sir. 6 का फर्स्ट पार्ट बेटा. Puneet has a recurring deposit account in a bank of Baroda and deposit rupee 140 per month for 4 years. What is 140? Sir, principal P. 140. For 4 years. What is 4 year? N. N is 4 year, but N is always in months. Then what I can do? 4 into 12. What we 48 get? months. 48 months. If we get rupee 8092 on maturity value is given. That is 8092 rupees. Find the rate of interest. R we have to calculate. Aditi, maturity value का फॉर्मूला भूल गया बेटा मैं. बताइए मुझे. Yes, sir. P into N plus interest. Is 8092. अभी मैं P की वैल्यू और N की वैल्यू मैं बाद में ही फिल करूंगा. इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए पहले. Yes, sir. P into N plus bracket N plus 1 into R upon 12 into 2 into 100. Very good. Is 8092. Now fill the values. P is 140. Yes, sir. 140. N is 48 into 48. P is 140 again into 48 into 48 plus 1. Directly you have to write down 49. R we have to calculate upon 2 into 12 into 100 is equal to 8092. Yes, Aditi, multiply these two. Yes, sir. Sir, Six 670. plus 10 is cancelled from here. 12 4s are 48. 4 से 2 आ गया. 14 2s are 28 into 49. R upon 10 is there. Is 8092. Yes, एक मिनट अदिति बस. Ankit. Now how I have to solve this one? Ankit, are you there? No. Anvesha? Yes, sir. बोलिए बेटा, क्या करूं मैं यहाँ? Sir, 6720 वहां जाके माइनस हो जाएगा. हाँ, 6720 इस साइड आके माइनस हो जाएगा. और साथ ही इसको भी सॉल्व कर लो. 49 को 28 से मल्टीप्लाई करो. 9 8 Sir, 72 7 कैरी. Sir, कितना? 13720. 720. हाँ सर, वो पॉइंट लग जाएगा ना 137. अच्छा. नहीं बेटा, जरूरत नहीं है डेसिमल लगाने की. 137.2 आ रहा है. वो नीचे 10 है, मैंने डेसिमल में नहीं लगाया बच्चे. ठीक है सर. सर क्रॉस Fine. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. अभी करेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में. पहले इनको माइनस करेंगे ना. पहले इनको माइनस करेंगे तो उसके बाद ही करेंगे ना बेटा. पहले ये वाली टर्म उस साइड जाती होती है, उसके बाद ये होता है. Sir, we take Minus- LCM also. पहले नहीं कर सकते इसको. पहले भी कर सकते हैं बेटा. सर वो हम तुम्हारे लोग यस बेटा प्रगति. हाँ सर हम लोग 1372 अपॉन 10 को पहले वो कर दे, सिंप्लीफाई कर दे तो 686 अपॉन 5 करके कर सकते हैं. हाँ जी बच्चे.
हाँ हाँ सर okay, इसमें हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं वो प्लस वाला। हाँ जी बेटा, हाँ जी बच्चे। थैंक यू सर। देखो एडिशन है, देखो मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं ना, ठीक है। अन्वेषा के लिए सिर्फ एक रास्ता है, अन्वेषा के लिए ज्यादा नहीं है, ओके। तो बाकियों के लिए बहुत रास्ते हैं। तुम सही रास्ता सही होना चाहिए। मेथड देखो, एक सम को सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं। अब मैं कहूँ कि 10 है, मैं बोल दूंगा 7 + 3। अन्वेषा बोलेगी नहीं 5 + 5। इप्सिता बोलेगी 4 + 6। जोया बोलेगी 1 + 9। आंसर तो सेम है ना सबका, यस और नो। अगर हम इसको नहीं भी कट करेंगे तो भी वही है, कट कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा, ओके। एलसीएम ले लेंगे तो भी बाद में, मतलब पहले क्रॉस हो जाएगा बाद में उधर जाएगा। यहाँ माइनस करो बच्चे, सर 2 ये एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर 6,720 प्लस 28 वाले यहाँ से फिर से समझा देंगे। कुछ नहीं बच्चे, यहाँ पे वैल्यूज फिल की है सारी, ये कटिंग की है मैंने, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है ना। हम इसकी ही कटिंग कर सकते हैं ना, आपस में बीच में प्लस साइन आ गया, इसको इससे तो काट नहीं सकते। इनको कटिंग किया तो ये रह गया बच्चे, और ये जो 6720 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको उस साइड ले गए, ये इसके आगे प्लस था तो उस साइड जाके माइनस हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और यहाँ पे माइनस किया तो कितना आ गया, 1372 आ गया। अब आर बच्चे हमने फाइंड करना है, 1372, 10 ऊपर चला गया, 1372 नीचे आ गया, इससे ये कट हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% पर एनम। यही हमने फाइंड करना था, अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Okay. Now, second part you have to do it yourself. जो इसका second part है वो same है। David opened a recurring deposit account in a bank. Deposit ₹300 per month. This is P. Sir, Yes. sir, can you please explain the sixth sum once more, sir? I did not understand. Where? What is the problem here? कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा, आपको बताइए। Sir, 6720 plus 28 into 49 वहां से प्रॉब्लम है सर। ये सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, आर सेम है, 10 नीचे, 6720 इस साइड जाके क्या होगा, माइनस होगा ना, ठीक है बच्चे। यस सर, यस सर। माइनस करके ये आ गया 1372। माइनस करना आता है आपको, आता है कि नहीं आता? सर हाँ सर, आता है सर। इनको माइनस किया ये आ गया। यस सर। अब ये बच्चे इनको मल्टीप्लाई किया 1372 अपॉन 10। आर अपने प्लेस पे 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई था तो नीचे आ गया, इससे ये कट हुआ, आर की वैल्यू 10 आ गई बेटा। थैंक यू सर। ओके बच्चे। सर सेकंड, यस बेटा इप्सिता। हो गया सर नेक्स्ट पार्ट। Next part you have to do it yourself, same as like first part, same method, same process, you have to do it yourself. अगर कोई प्रॉब्लम आता है बेटा तो कल स्टार्टिंग में पहले मैं वो करवाऊंगा, ठीक है? यस सर। Now 7th sum. Amit deposit ₹150 per month in a bank for 8 months under a recurring deposit RD account. What will be the maturity value of this deposit? Maturity value we have to find. If the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month. मतलब ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिखा है कि at the end of every month. This is बाकी सब skip रहिए, बस ऐसे ही थोड़ा सा same है, same process as like first sum. जैसे first sum है ना? Yes बेटा। बच्चे आपका नेट स्लो है, आवाज ही नहीं समझ आ रही, क्या बोल रहे हो? हो गया क्वेश्चन वाला भी। चलो। First sum same as like this one, you have to solve first, second, third sum किए थे ना, मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी थी, वही है। इसका कोई मीनिंग नहीं है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इसका कोई यूज नहीं है, सेम एज लाइक फर्स्ट सम है। 8th sum, Mrs. Geeta deposit ₹350
मिसेस गीता ने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए? 350 मनी डिपॉजिट करवाई पर मंथ इन ए बैंक. In a bank for 1 year and 3 months under the recurring deposit scheme. If the maturity value of what deposit is this, find the rate of interest. अभी जैसे हमने 5th and 6th सम किए थे सेम है. You can try. Try कर लोगे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because all sums are of same type. मतलब हमें दो तीन एक प्रिंसिपल फाइंड करने वाला सम कर लिया, एक रेट फाइंड करने वाला सम कर लिया, मेच्योरिटी वाला फाइंड कर लिया, ठीक है, वो सारे एक जैसे. अभी इसमें बच्चे एन फाइंड करने वाला आ गया. ये सम A recurring deposit account for rupee 1200 per month has a maturity value of rupee this. P given है, maturity value given है. If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, find the time in month of this recurring deposit account. Yes, ninth sum. Arohi. What is 1200? P. मम्मा ने बोला है कि स्लो बोल रहा है, ऊंची नहीं बोलना. No, sir. ऊंची बोलो बेटा, कोई बात नहीं, डर खत्म होगा ऊंची बोलोगे तो. आगे कॉलेजेस में जाना है तो वहां पे तो बेच के खा जाएंगे आपको. P is 1200. Maturity value is given rupee 12440. If the rate of interest is 8%, कॉल आ रही है किसी की. हाँ जी बेटा, rate of interest is 8% per annum. Now, if the rate of interest and the interest is calculated at the end of every month, find the time. Time is n in months, and we have to calculate on this recurring deposit account. Maturity value as like rupee 12,440. In place of maturity value, yes, Astha. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी मनमोहित. सर मैं सर 10th क्वेश्चन ट्राई मैं कर लूं ट्राई 10th क्वेश्चन. तेरे को बाहर निकाल दो मनमोहित. सर नो. डिस्टर्ब करना जरूरी है बेटा. सॉरी सर. तू जो मर्जी करता रहे अपने घर में बैठा. यस बच्चे. आस्था, मेच्योरिटी वैल्यू बेटा. Yes, sir. मेच्योरिटी वैल्यू P into N plus I. P into N plus I. जयंती जैसी आवाज है इसकी बिल्कुल. P. P is 1200. तेरी क्लासमेट तो नहीं है जयंती? No, ma'am. No, sir. Okay. I. P into N Hmm. into N plus 1 Hmm. into R Hmm. upon 2 into 12 into 100. इसने ना एक चीज बहुत सही बोली है. जब आज अभी तक मैंने बच्चे जिससे मैंने फॉर्मूला पूछा ना इसका इंटरेस्ट का, हर कोई क्या बोला? P into N ब्रैकेट N plus 1. सबने ये प्रोनाउंस किया था ना इसको. ब्रैकेट को कभी भी बच्चे बोलते नहीं होते. सर इनटू बोला था. तेरे से तो पूछा ही नहीं मैंने. हाय सर, आपने फॉर्मूला पूछा तो था मेरे से. चलो कोई बात नहीं, तू तो अच्छी बच्ची है ना. नहीं अच्छी. P into N plus 1. इसको इंटू बोलते हैं बेटा. ब्रैकेट कभी नहीं बोलना आगे से किसी ने भी. अंडरस्टूड? Okay, sir. ये ध्यान रखना बेटा. इंटू बोलना है. बस थोड़ा सा सांस रोक लो. देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ P into N plus 1 इकट्ठा बोलना है. ओके अगर तुम बोलोगे P into N plus 1 तो अलग गलत हो जाएगा. थोड़ी सी सांस रोक के 2 मिनट उसको सॉल्व. अब N 1200 N as like plus yes Aslan है कि क्या है? N as like N plus 1 as like
R is 8 अपॉन यहां तक आगे नहीं लेके जाना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में आगे चला जाता है। 2 into 12 into 100 is 12440. 2 zeros are cancelled, 12 से 12 कैंसल, 2 से 4, यहाँ पे क्या बच गया बच्चे 1200n, यहाँ पे 4 into n 4n square, 4n into 1 4n is equal to 12440. अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे, 4n square 1200 4, यस बेटा सही समझ नहीं आया 4n। ये देखो अच्छे, n into this 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n बच गया, साथ में n plus 1 बच गया ना, नीचे कुछ नहीं था। अब 4n को n से मल्टीप्लाई करेगी क्या आएगा रूप 4n square। 4n को 1 से करेंगे 4n, Okay is sir। this one। अब 4n square as like 1200n plus 4n, what we get this one, Yes sir। और 12440 को इस साइड आके माइनस हो गया। अब तीनों 4 के टेबल पे बच्चे कट हो रहे, मतलब कॉमन आ रहा है, और इस साइड जाके 4 खत्म हो रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना कर सकते हैं। योदिका 4 कॉमन ले लिया मैंने, योदिका क्या आएगा सर 1000 सर n square। क्या हुआ आगे, सर 301। 301 आगे, सर 3110। 3110 is equal to 0. Next step, n square plus 301n minus 3110 is equal to 0 upon 4. अब मिडल टर्म स्प्लिट, 3110 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 301 आए। सर यस बेटा, सर ये जहाँ पे आपने इक्वल टू 0 किया था उधर से समझ में नहीं आया। इक्वल टू 0 कहाँ पे किया था, ये बच्चे ये प्लस यस का सर, था वो ना, आपने इक्वेशन बनाई थी उसके नीचे। हाँ ये था ना बच्चे, इस साइड था, इस साइड आके माइनस का हो गया, और उस साइड क्या बचा 0। अब इन यहाँ 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में क्या कॉमन है 4 कॉमन है। यस सर। n स्क्वायर 4 यहाँ से कॉमन डिवाइड करेंगे 4 से तो 301 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3110 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई है सारी टर्म्स के साथ, तो 4 नीचे चला गया, 0 upon 4 is 0। अब 3110 के फैक्टर जिनको माइनस करें 301 आए, तो 311 and 10 माइनस करेंगे तो 301 आ रहा है ना, तो n स्क्वायर प्लस 311n। मिडल टर्म स्प्लिट तो सबको आती है ना। यस सर। यस सर। What is common between first two? n plus 311. Next two minus 10 minus 10 n plus 311. What we get? 0. n plus 311 is common. What is left? n minus 10. Either this or this. n plus 311 को 0 की इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 311 आ गई। यहाँ पे बच्चे n माइनस 10 को 0 की इक्वल करेंगे, n की वैल्यू 10 आ गई। और नंबर ऑफ मंथ कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो नंबर ऑफ मंथ्स आर 10 months. दिस इज द आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो जब आपने इक्वेशन बनाई थी जब दोनों साइड पे थे, तो सर उस टाइम पे हम उसको डिवाइड बाय 4 कर सकते थे बाय डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। एज यू विश। ओके सर। सबको समझ आ गया बच्चे ये? yes sir यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसको ना Sir. समझ आया हो? सर हाँ जी बेटा। सर वो 0/4 is equals to 0। ओके समझा सर। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो अगले स्टेप में इसको 0 ही लिख दिया। सर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना अच्छी तरह नहीं आता। सितांशी मैं ना, हाँ जी बेटा। so can you please explain this sum once again? या श्योर। बच्चे माइक ऑफ करो। प्रिंसिपल मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, टाइम वी हैव टू फाइंड। मैच्योरिटी वैल्यू लिख लिया, उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखा बेटा,
same. P into N, principal monthly installment 1200 into N, interest के place पे इसका formula into n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. This one 1200 n as like p के place पे p की value 1200, n as like n plus 1 as like r 8, 2 1200 same. इसको कटिंग किया है बेटा सिर्फ स्तुति, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 into n plus 1, तो 4n into n plus 1 मल्टीप्लाई किया 4n स्क्वायर प्लस 4n. अब यहाँ पे देखो बच्चे, 4n स्क्वायर को पहले लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म, 1200n प्लस 4n दोनों को ऐड किया 12404n, और ये साइड प्लस का था, इस साइड आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0. अब 4 कॉमन आ गया. यस बेटा. सर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, कैन यू प्लीज टीच मी दैट? मिडिल टर्म का बच्चे मैं ना वीडियो का लिंक भेज दूंगा, एक बार उसको देखना. अदर उसके बाद नहीं तो अभी ना तुम्हारे चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके सर. 5th चैप्टर है ना जो, उसके अंदर मैं फिर से पूरा प्रॉपर सिखा दूंगा, क्योंकि वहां पे मिडिल टर्म ही स्प्लिट करनी है हमने सारे सम्स में मोस्टली. ओके ओके सर. क्योंकि ये पूरा टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिट का. सर ये सब थोड़ा डिफिकल्ट था. अच्छा मुझे भी उसमें प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं बेटा, देखो प्रॉब्लम जब जितना टाइम तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. मैं सिर्फ देखो डायरेक्शन दे सकता हूँ, करना ना करना तुम्हारे पे डिपेंड है. ठीक है, कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, इज्जत बनेगी. नहीं Yes, करोगे नहीं करोगे तो बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा. समझे? हाँ सर. यस सर. बस ये Yes, sir. मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, डांट सकता हूँ. तुम्हारे पेरेंट्स, इवन योर पेरेंट्स आल्सो, वो सिर्फ पैसा खर्च सकते हैं बच्चे तुम्हारे पे, या तुम्हें समझा सकते हैं. समझना ना समझना तुम्हारे पे डिपेंड है. और आई थिंक सो कि तुम सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस लगाना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, अभी लास्ट ईयर मेरे साथ जुड़े हुए थे इप्शिता, इफ्रा, ऋतुजा, जोया, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं. उनके कारण, मतलब उन सबके कारण तुम यहाँ पे हो, क्योंकि आपको भी अच्छा लगा लेक्चर सुना, आपको भी ऐसे था कि हम क्लास लगाएं, अटेंड करें, हमारा भी कोई मतलब नाम बोले, हमसे भी कोई पूछे. ओके. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर मैं नंबर 7 ट्राई की पर गलत आ रहा है, अब वो कर सकते हैं प्लीज? या बच्चे श्योर आप ही करवाओगे? आदिश्या यस सर. बोलो, फटाफट बोलते रहो, मैं क्या लिखता रहूं. Yes, sir. Sir, it is given that Amit deposited rupees 150. So P is equal to rupees 150. बस आपने जैसे सॉल्व किया है बताओ, मैं जहाँ पे गलती होगी मैं आपको बता दूंगा आपकी. N is equal to 8 months. यस. R is equal to 8% per annum. यस. Now we have to find out interest. So interest Yes. equals to P into N into N plus 1 into R divided by 2 into 12 into 100. Very good. So then calculation I did 150 into 8 into 9 into 8 divided by 2 into 12 into 100. 1 0 is cancelled. Yes, sir. Now what do you have to get? Yes, sir. 2 and 8 can be cancelled out. 4. Yes. 4 threes are 12. 3 5s are yes, sir. 15. 8 5s are 40. 49s are 360. Interest received 360 now. Yeah, mistake. Mistake. Somewhere I have done mistake here. In multiply you have done the mistake. Okay. Then नहीं बच्चे 8 5s are 40 into 9. 360 आएगा. पीछे 10 आएगा. अच्छा sorry. Yes, sir. sorry. दिखा नहीं वो. 36 रुपये आएगा. Okay, very good. Yes, sir. I got Now that. the maturity value P into N plus I. Yes, sir.
150 into 8 plus 36. 15 8s are 120, 1200 plus 36. 1 2 3 1236 is the maturity value. Okay. Sir, interest I did correct, but at the maturity value, that addition only I did wrong. Okay. Thank you, sir. Now, yes, beta. सर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है? Yes, बच्चे. ओके सर. हर एक क्वेश्चन पे आंसर शीट पे अपना नेम लिख के डिपॉजिट करवाते हो ना? यस सर. वही सेम हर एक क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं है कि पहले फिजिक्स का एग्जाम था उसमें लिख दिया, मैथ का एग्जाम हुआ उसमें मैंने अपना नाम ही नहीं लिख के आई, रोल नंबर ही नहीं लिखा. तो इसमें हर एक क्वेश्चन में बच्चे लिखना कंपल्सरी होता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट 10th सम. मिस्टर गुलाटी, एक सेकंड ये करवा देंगे सर. इसका आंसर मेरे को गलत आ रहा है सर. 10th सम का आंसर गलत आ रहा है? यस सर. कोई बात सर नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट में दिक्कत हो रहा है सर मेरे को. कोई बात नहीं बच्चे. वेट. यस मनमोहित, करवाओ मुझे. ओके सर. सर पहले सर हमें दिया होगा. Mr. Gulati has a recurring deposit account of ₹300 per month. What is 300? Sir, principal. ₹300. If the rate of interest is R is 12% per annum. And the maturity value? Sir, 8100. ₹8100. Find the time. N we have to find. Maturity value T into N plus I. I is P into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100 is equal to 8100. Yes, Manmohit. Sir, 300 into N plus 300 into N plus 1 into 2. Yes, beta. सर आपने सर ऊपर 2 into 12 नहीं लिखना सर. लिख दिया. ओके सर. इंसान हूँ, गलती हो जाती है. यस सर. इट्स ओके. सर आ जाएगा 300n प्लस अपॉन 1 लिख दूं? यस सर. 3n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8100. सर इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. सर 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8100. अगले स्टेप में ये 2 है जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैंने यहीं पे कर दिया 0 0 2 1 से. तो अभी सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे. मैं यहीं पे कर देता हूँ. यस सर. 3n स्क्वायर को पहले लिखेंगे. दिस वन 600 प्लस 600n प्लस 3n 603n इज इक्वल टू 16200 इस साइड आके माइनस हो जाएगा 0. अब तीनों में 3 कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? n स्क्वायर प्लस 201n माइनस 5 5400 आ जाएगा is 0. यस सर. n square plus 201n minus 5400 is 0. अब 5400 into 1 5400 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 201 आए. सर 225 and 24 n square plus 225n minus 24n minus हाँ 24n. सर 24n minus 5400. First two, last two. N is common, n plus 225. From here, minus 24 is common, n plus 225. Minus common लिया इसलिए साइन चेंज हो गया. n plus 225 को 0 के इक्वल करेंगे. n की वैल्यू minus 225. n minus 24, n की वैल्यू 24. तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. और n is 24 months is the answer. समझ आ गया बच्चे? Got it, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last sum. सर ये मैं कराऊं?
नहीं रुक जाओ. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. Sorry. He deposited rupee 2,500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupee this. Find the total interest earned by Mr. Gupta. The rate of interest per annum. देखो, this is the. अपने आप करोगे बेटा, मैं नहीं करवाऊंगा, ये होमवर्क है तुम्हारा. ओके ओके सर, हो गया तभी तो बोला था मैं. Now, exercise 2B. Because ये सारे के सारे sum same type की. Pramod deposit rupees 600 per month in a recurring deposit account for 4 years. If the rate of interest is 8% per annum per year, calculate the maturity value. First sum, maturity value. किसी को कोई डाउट हो अभी भी maturity value find नहीं करना आता, वो बोलो बेटा. नो सर. किसको नहीं आता? आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. महक, Yes, sir. दिवांशु, Ishmeet, Gitanjali, Yes, sir. Gitanjali, यस सर. Gurashis, Hargun, yes, sir. हर्ष, अभी हो जाएंगे. स्तुति, जैपनूर, जशन, जसलीन, सर यस. यस. महिमा. Excuse me, sir. यस बेटा. सर ये Yes, sir. years क्यों लिखे हुए हैं सर? 2017, 15 ये सब सर क्यों लिखे? ये बच्चे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं सम्स. ओके सर. 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये सम. ठीक है, ये Okay. वाला सम 15, 14, 13. देखो सम मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, एक ही फॉर्मूला है इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का. सारे सम्स उसी टाइप से हैं. सेकंड सम है, नहीं हुई. Ritu has a recurring deposit account in a bank and sorry beta, and deposit rupee क्या हो गया गले को? Sorry beta, rupee 80 per month for 18 months. Find the rate of interest paid by the bank if the maturity value is this. Rate of interest R we have to calculate. कर लोगे? यस सर, हो जाएगा. Yes, sir, of course. Third, Yes, sir. maturity value of a RD account is rupee this. If the maturity installment is rupee 400 and the rate of interest is 8%. Find the time in this RD account. Time find करना है. हमने दो सम्स किए थे बच्चे, एन फाइंड करने वाले. सर वही हो same जाएगा. है. प्रिंसिपल सर दिया हो है. जाएगा सर, एक ही टाइप का Yes, सब है, sir. कॉन्सेप्ट एक ही है. या Yes, बेटा, sir. 9th and 10th sum same. सर सब एक है. सर बस एक सम करवा दो इनमें से. सर वो मेरे से हो नहीं रहा. 4th one नहीं सर, 8th वाला. कोई बात नहीं, अभी आगे बेटा. Mr. Richard has a recurring deposit account in a post office 3 years, 7.5% per annum, simple interest. ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट वर्ड डाल दिया. मतलब इसका कोई यूज नहीं है. जहां पे आरडी अकाउंट लिखा आ गया, चाहे वहां सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, चाहे मंथली इंटरेस्ट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो सेम उसी फॉर्मूला से करना है. नो चेंजेस देयर. अंडरस्टूड? Yes, sir. बस इसमें ये क्या है, दिस एज इंटरेस्ट. ये मेच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये इंटरेस्ट गिवन है. अभी अब हम मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंटरेस्ट का लगाएंगे. ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट यू हैव टू कैलकुलेट. अब यहां देखो, कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट लिख दिया. कम्युलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द सेम थिंग. कम्युलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द सेम थिंग. एक ही चीज के दो नाम है. अंडरस्टूड? Yes, सर. प्रतिष्ठा समझ आ रहा है बेटा आपको? yes, sir. Okay. Same, you have to do it. Deepa has a 4-year recurring deposit account in a bank and deposit rupee 1800 per month. If she gets rupee this at the time of maturity, this is the maturity value. Find the rate. फिर again rate. Mr. Brito deposit a certain amount of money each month in a recurring deposit account. If the rate of interest is 8%, R is given. Mr. Brito get rupee this from the bank after 3 years. This is the maturity value. Find the value of the monthly installment.
टाइम 3 ईयर 36 मंथ हो जाएंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अभिषिता? सर एंड में कैलकुलेशन मिस्टेक है या पता नहीं, बट वो निकल नहीं रहा एंड वाला। तो फिर से इसको ट्राई करेगी, ठीक है, बिना उसको बिना देखे। नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कल का दिन है। अंडरस्टूड? ओके सर। नेक्स्ट सम। Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposit ₹800 per month, 1.5 years. Receive this at the time of maturity. Find the rate of interest. Again, same. Next sum. Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pay an interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is 1,000, find the interest earned in 2 years maturity value. I think no, सारे के सारे सम सेम है। तो बिल्कुल सेम है सर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके यस सर, हम बेटा। ट्राई करेंगे, डाउट आएगा तो बोलेंगे। यस बच्चे बोलो। सर 8th सम में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है ना? या बच्चे ठीक है सर, कर लूंगा। लास्ट सम। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर नंबर 10 में पूछा गया है इंटरेस्ट अर्नड इन 2 इयर्स, 2 इयर्स का फाइंड करना है। यस बेटा, ऊपर भी 2 ईयर ही है बेटा टाइम। ओके सर, सो नॉर्मल इंटरेस्ट फार्मूला ही सेम फार्मूला। मैंने ये चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया, मैंने ये चैप्टर सेकंड चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज इट इज सो इजी। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेता कुछ भी समझ नहीं आना था, क्योंकि ट्यूनिंग मैंने सबके साथ ट्यूनिंग बिठानी थी। ओके Yes, sir. नाउ मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट और कुछ भी लिखा हो, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इफ द ही गेट रुपी दिस एज इंटरेस्ट, नाउ इंटरेस्ट इज गिवन नॉट मैच्योरिटी वैल्यू, मंथली इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी फाइंड करनी है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। यस हो जाएगा। यस बच्चे सर हो जाएगा। सर कैन डू इट। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर अभी किसी ने पूछा था, पता नहीं कि जहाँ पे उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट की बात की है और मैच्योरिटी वैल्यू वगैरह उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, तो फिर वहां पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो सर ये भी पॉसिबल है? नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल। जब बच्चे मैंने क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट भूल जाओ, यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आ गया ना, नहीं that, सर अभी at that time you have to use the formula for interest, p into n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100. Understood? Yes sir. Yes sir. इसका कोई मीनिंग नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। या बच्चे। सर 11 वाले में 1200 is the interest or the maturity value? This is the interest. साफ साफ लिखा है बेटा। If he get rupee 1200 as interest at the time of maturity, this is the interest. Understood? Yes sir. You have to complete this chapter from this book. Tomorrow I will solve your doubts first, then from ML Agarwal we will start this chapter. And yes. I think yes sir, ML Agarwal में से हो जाएगा, और day after tomorrow S Chand, और उसके बाद A Das Gupta, that is Bharti Publication, that is a very good book. A Das Gupta जिसने कर ली सर सेम चैप्टर या सारी बुक्स में से, मतलब इस वीक में खत्म हो जाएगा। बहुत मस्त से रिवाइज हो जाएगा सर, फिर yes. कैसा भी क्वेश्चन आए प्रॉब्लम ही नहीं होगी। I say already say that, मतलब कंफ्यूज, अभी बोर्ड का एग्जाम तुम्हें क्या पता है कौन सी बुक में से आ रहा है क्वेश्चन। ओके yes sir. यस सर। यस बेटा। सर तो मई में हमारे यूनिट 1 होंगे, तो फिर सर मई तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? कितना सिलेबस? सर अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोला 6 to 7 चैप्टर्स आएंगे यूनिट 1 हो जाएंगे, हो जाएंगे बेटा। ओके सर 10 की सम दिखाना कॉपी से। कौन सा 10 सम? 2a का। अच्छा ये लो बेटा। ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? सर अभी आप और कुछ लेने वाले हो क्या? नहीं बेटा। ओके बाय। हो A2 हो गई, चलो ओके बाय। बाय सर। tomorrow थैंक यू सर। बाय 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 बाय। सर थैंक यू सर।